Hello kids. In the last class we learned about types of animals, okay, and types of birth, laying eggs and by giving direct birth to their young ones, and skin of animals. We learned it ना. लास्ट क्लास में हमने एनिमल्स के टाइप्स देखा, उनके स्किन के टाइप्स देखा, एंड बर्थ. टू टाइप्स ऑफ बर्थ आर देर, बाय लेइंग एग्स एंड बाय गिविंग डायरेक्ट बर्थ टू देर यंग वंस. टू टाइप्स आर देर. वी लर्नड इट ना. सो सी हियर, हुज स्किन. किसका स्किन है? नाउ यू नो हाउ टू रिकॉग्नाइज एनिमल्स बाय देयर ईयर्स. आपने अभी देखा है कैसे एनिमल्स को उनके ईयर्स से पहचानना है. लेट अस सी इफ यू कैन रिकॉग्नाइज एनिमल्स बाय देयर स्किन. अभी आप पहचानोगे किस एनिमल्स का स्किन कौन सा है. सो दैट यू टर्न द पेज. You learned it from first page. Who has got my ears? This one picture. किसका कान किसके पास है? किसने लिया मेरे कान? You learned it, no? That type you recognize this one skin. I know because you all are good kids, good children, good student. Yes or no? Yeah. So match the animals shown here with the pictures of their skin. Make the correct pattern of the skin on the picture of the each animals. See here some animals given and here some animal skin picture given. First look at this picture carefully. Recognize which type of animals there, which animal is there, what animal is there. It is a squirrel, deer, tiger, zebra and leopard. Okay, when you will recognize the animals, you will visualize suddenly the color, the skin of that one animal. जब भी आपने इन एनिमल को पहचाना तो आपको पता चलेगा, हाँ स्क्वायरल कैसा रहता है, टाइगर कैसा रहता है, जिब्रा तो ईजी है, ब्लैक एंड वाइट स्ट्रिप्स. सडनली यू विल जॉइन. आई नो नाउ. यस मी लेपर्ड एंड टाइगर्स. थोड़ा कन्फ्यूजन है ना. स्क्वायरल को तो 3 स्ट्रिप्स रहते हैं बैक के ऊपर. डियर, हाउ इट इज स्किन? Brown it is, then dot is there, its back dot is there. Then so will you join that one skin to animal? Yeah. Okay, see kids, first of all I will show you what is this, which animal skin is there. Dot on their skin body. Deer, join here to here. Okay, here to here. Now second one, just we are talk about squirrel. It has a 3 straps on its back. Then it has no 3 strips, just like a belt type 3. Okay, join your squirrel. Now right here. Okay, so sorry, join the third one. Now guess which animal this one and this one is there. This is the tiger. And which one it is there? Leopard. And show me tiger. Where is the tiger? See here it is there. We'll recognize on his walk only. Okay, now it's a leopard. Where it is the leopard?
it is down is there. So I will join it. Okay, I'll go from here only. Then last remains zebra, black and white strips. Zebra is here. Understood, na kids? How to join the animals, means match the animals with their skin. The different pattern on the animals are due to the hair on their skin. आप पूछोगे टीचर why it is different? Because their hair on their skin, उनके स्किन के ऊपर कैसा कलर का हेयर रहता है वैसा ही कलर का वो एनिमल्स का इमेजिन हो जाता है, पिक्चर हो जाता है. द डिफरेंट पैटर्न्स ऑन द एनिमल्स आर ड्यू टू द हेयर ऑन देयर स्किन. उनके हेयर की वजह से उनका कलर अलग अलग आता है. पैटर्न्स डिजाइंस, सी every pattern is different due to their hair on their skin. Animals are different pattern skin. Animals have different pattern skin due to the hair बाल on their skin. उनके बाल के स्किन के ऊपर के बाल के वजह से उनका पैटर्न्स अलग अलग रहता है. Okay. Now next, see here, exercise is there. Have you ever seen an animal without a hair? अभी tell me kids, आपने कभी बिना हेयर के एनिमल्स को देखा है? Have been removed. Imagine how the animal would look if it did not have any hair on its skin. There would be no patterns. अपने एनिमल्स को देखा विदाउट हेयर वाला? No. Most of animals have a hair on their body. Okay? Now see exercise. You might have seen some of the animals. Here given some animals name. You might have seen, आपने देखा ही होगा, देखा ही है. Fox, frog, mouse, hen. In this column, maybe I guess you didn't saw fox only, but you saw all these 3. In this one, second column, elephant, you saw crow, cat, camel. Yeah, you saw all this one. Sparrow, peacock, buffalo, lizard. Yeah, you saw. From this column you saw all animals, this one column all animals. Here only one fox remain. Pigeon, pig, duck, cow. From this column also you have seen all animals. Birds, only one you could not see. Okay, now put the name of the animals in the table given below. Here given some animals name and here below downside tables are there. Which type of tables are there? Ears can be seen. First table is ears can be seen, means एनिमल का ears दिखते हैं, बाहर दिखते हैं. एग्जाम्पल डॉग, कैट, दे हैव ईयर्स आउटसाइड, नो? ओके. हैज़ हेयर ऑन स्किन. सेकेंड कॉलम में क्या है? जिनके ऊपर बाल है. फर्स्ट कॉलम जिनके ईयर्स दिखते हैं. सेकेंड कॉलम जिनके बॉडी के ऊपर हेयर है. थर्ड वन ईयर्स कैनॉट बी सीन. फर्स्ट कॉलम में ईयर्स दिखने वाले एनिमल्स का नेम लिखना है और थर्ड कॉलम में कैनॉट बी सीन, नहीं दिखने वाले एनिमल्स के नेम लिखना है आपको. नहीं दिखने वाले, अपोजिट आर देयर बोथ. नाउ हैज़ फेदर ऑन स्किन. फोर्थ कॉलम इज फेदर. फेदर वाला बर्ड्स का नेम लिखना है. ओके.
Now see, ears can see from these animals. Fox के ears दिखते हैं, so I written here. Elephant, pig ears, mouse ears है. Cat, buffalo, camel, goat. Cat, buffalo, camel and goat. I written here, sorry, cow. These all animals ears we can see. इन सभी एनिमल्स के कान हमको दिखाई देते हैं. ओके, नाउ हैज़ हेयर ऑन स्किन. किस एनिमल्स के स्किन के ऊपर हेयर है? फॉक्स यस, एलिफेंट यस, पिग यस, माउस यस, cat yes, buffalo yes, camel yes, cow yes. These all animals have hair on their body, but you cannot see that one from far. दूर से आपको नहीं दिखाई देंगे. जब भी आप उस एनिमल्स के साथ आगे क्लोज गए, नज़दीक गए, तो आपको छोटे छोटे से बाल उस एनिमल्स के ऊपर दिखाई देंगे. अंडरस्टूड? आप बोलोगे टीचर मेरे दिस वन बफेलो के स्किन के ऊपर बाल नहीं है. आर देयर बेटा, समबडी आर देयर टू रिमूव. कोई लोग क्या करते हैं, उनके बाल को निकाल देते हैं बिकॉज ऑफ दैट वन लाइसिस. इंसेक्ट हो जाते हैं इसलिए निकाल देते हैं. बट दिस ऑल एनिमल्स हैव हेयर ऑन देयर स्किन. स्किन के ऊपर उनको बाल है. नाउ ears cannot be seen. इस कॉलम में जो भी एनिमल्स है, बर्ड्स है, उनके ईयर्स है लेकिन दिखाई नहीं देते. यहाँ पर दिखाई देने वाले एनिमल्स है. क्या दिखाई देने वाले? ईयर्स. और यहाँ पर नहीं दिखाने देने वाले, बट दे हैव ईयर्स. स्पैरो के ईयर्स दिखाई देते हैं? नहीं, बट आर देयर बीनीथ द feather. Pigeon, frog, crow, peacock, duck, hen and lizard. They all have ears but cannot be seen. दिखाई नहीं देते because small holes are there, hidden that one beneath the hair, beneath the feather. Okay, but lizard not have a feather hair, but it is also is there in that on its above that one near to neck head. Now has feathers on skin. किस एनिमल्स के feathers होते हैं? has feathers. Sparrow पंख होते हैं. Pigeon yes, crow yes, peacock yes, duck yes, hen. These all animals have feathers on their skin. Understood, no kids? Okay. Now, in which list did you put the cow and buffalo? किस लिस्ट में cow and buffalo है? वो देखो cow कहाँ पर है? Yes, buffalo yes. Ears can be seen में लिखा है. Here has hair on skin लिखा है. Buffalo and cow are there. Okay. From a distance can you see the hair on their skin? दूर से देखा तो कऊ के और बफेलो के ऊपर हेयर्स दिखाई देते हैं आपको? नो. कैन यू सी फ्रॉम फार? दूर से, फ्रॉम डिस्टेंस. कैन यू सी द हेयर ऑन देयर बॉडी? सॉरी, ऑन देयर स्किन? नो. व्हेन यू गो नियर टू देयर, उनके सामने आगे गए तो दिखाई दे देंगे. ट्राई टू गो नियर वन ऑफ देम. ट्राई करो. नो 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 नो. You go with your parents only. Don't go alone. अकेले नहीं जाओगे. आपके पापा, मम्मी, दादा या दादी के साथ ही जाओगे. पता चला? ओके. Try to go near of them. Could you see the hair? अकेले मत जाओ. किसी के साथ जाओ. मम्मी, पापा, दादा, दादी. Okay? Then you see that one. If you were to meet an elephant, would you dare to touch it? Do you know that an elephant also has hair on its skin?
एलिफेंट के आगे गए तो उसको टच करना से डर लगता है, अदरवाइज विल यू टच, आप टच करते हो, डरते हो या करते हो? ओके गुड. इट हैज़ हेयर ऑन इट्स स्किन. हाँ यस, elephants also have hair on their skin. Next turn the page number 16. Now skin over. Okay, whose skin over? Now we are going to learn about types of birth. मैंने बोला था बच्चों आपको एग में से बर्थ होने का, सॉरी एग देने का और डायरेक्टली बर्थ होने का. एग में से बर्थ मीन्स नॉट अ एग में से. द बर्ड विल गिव एग, इन दैट एग, inside the egg baby will be there. After hatching the baby will come out. Can you tell which of the animal mentioned in the list of egg? कौन कौन से एनिमल्स हैं एग देने वाले एनिमल्स? फाइंड आउट एंड राइट नेम ऑफ द एनिमल्स इन द गिवन बॉक्स. हियर इट इज गिवन, राइट इन दिस वन बॉक्स. एंड विच ऑफ द एनिमल्स in this list give birth to baby को directly egg one, same to same baby को. Write their names. So kids, look here. It is a greenish, yellow greenish is there, box is there. Here you write lay eggs animal's name. Laying eggs animal's name. Frog, sparrow, crow, hen, parrot, lizard, fish, ant, duck, snake. All these animals lay eggs. ये क्या करते हैं? Eggs देते हैं. Okay. From eggs the baby will come out after hatching. Now see, give birth to baby. Directly baby को birth देने वाले animals. Give birth to babies. Cat, pig, giraffe, cow, elephant, dog, human being and monkey. They give birth to babies. पता चला बच्चों कौन कौन से एनिमल बेबीज को बर्थ देते, बेबीज विल बर्थ, बेबीज को जन्म देते हैं, और कौन कौन से एनिमल्स सच एज अ बर्ड्स एंड इंसेक्ट ले एग्स देते हैं. नाउ लुक एट अगेन एट द टेबल on this one previous page. Draw a line under the name of animals whose name are in green box. Put a circle name of those animals whose name are in the red box. यहाँ पर क्या बोला है? पेज टर्न करो और देखो इधर some animals name given. कौन कौन से एनिमल्स एग देने वाले हैं उनको सर्कल करो. एग एनिमल frog circle, hen circle, elephant no, crow circle, no, sparrow circle, peacock circle, no, lizard circle, pigeon circle, pig no, duck circle. उनको सर्कल करो और जो बेबीज को गिव बर्थ टू बेबी नो दैट वन let it be. Don't circle that one. Understood my kids? See, frog lay egg, hen lay egg, crow lay egg, sparrow lay egg, peacock lay egg, lizard lay egg, pigeon lay egg, duck lay egg. Sorry, only that much only is there. Up to duck. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 animals, and here we are written 2 animals extra, parrot and snake. Understood? And remaining all give birth to babies.
Okay, now see in this picture, the dog gives birth to babies, puppies. Yes or no? वो डॉग ने डायरेक्टली अपने जैसे ही बेबीज को बर्थ किया है. Now next question answers are there. See, what did you note? Those animals whose ears you can see have hair on their body, these animals give birth to the young ones. आपको पता है बच्चों, जिस एनिमल के कान दिखाई देते हैं, ईयर्स मीन्स कान, और जिस एनिमल के स्किन के ऊपर हेयर होते हैं, वो एनिमल्स क्या करते हैं? गिव बर्थ टू बेबी. वो क्या करते हैं? बेबी को बर्थ करते हैं. एंड दोज एनिमल्स डू नॉट हैव ईयर्स आउटसाइड एंड डू नॉट हैव हेयर ऑन देयर बॉडी, दैट एनिमल ले एग. जो एनिमल के कान बाहर नहीं रहते और बॉडी के ऊपर हेयर्स आर नॉट देयर, बाल नहीं रहते, वो एनिमल्स क्या करते हैं? एग देते हैं. एग lay eggs. पता चला what is the difference between laying eggs animals and giving birth young ones animals? Those animals have ear and hair on their body, they give birth to their young ones, and the animals, those are not have a hair and ears outside, these animals lay eggs. Okay, now question, have you seen animals around your house or school that have small babies? Write their names in your notebook. फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? आपने कभी ऐसा एनिमल्स देखा है आपके घर में, घर के साइड में, या स्कूल में मीन्स स्कूल सराउंडिंग में, जो स्मॉल बेबी को उसके साथ स्मॉल बेबी है, स्मॉल बेबी दैट हैव स्मॉल बेबीज, या डॉग, गोट, बफेलो, काऊ, उनके बेबी रहते हैं ना. इट मे बी इन योर हाउस, आपके घर में भी होगा, आपके घर के साइड में भी होगा. डॉग वगैरह होता ना, कैट, दे हैव देयर बेबीज मतलब बच्चे. डॉग को बच्चे हैं ना, आपके घर के साइड में इधर उधर घूमते रहते हैं. आपके घर में बफेलो है, बफेलो को बेबी आती है ना, काऊ, बफेलो, कैट हो तो कैट को बेबीज आते हैं. ओके, दैट टाइप राइट देयर नेम्स, कैट, डॉग, काऊ, बफेलो. नाउ हैव यू एवर केप्ट अ पेट? डज एनीवन यू नो कीप अ पेट? यस, I have a pet animal, that is a dog. आपको पता है कौन कौन से एनिमल्स पेट होते हैं? डॉग, कैट, एक्सेट्रा. नाउ फाइंड आउट मोर अबाउट द पेट. आपका पेट कौन सा है, उसके बारे में ज़्यादा बोलो, मीन्स बता दो क्या क्या है. माई पेट इज डॉग. विच एनिमल इज इट? मेरा पेट तो क्या है? डॉग है. It is a dog. Answer is it is a dog. Second question, does it have a name? What is it? आपका पेट डॉग है, ओके, उसका नाम तो बोलो. Yes, I call it मोथू. It is an animal. मेरा पेट डॉग है, मैं उसको मोतू प्यार से कोई मोतू बोलता है, टॉमी बुलाता है, जिम्मी बुलाता है, रॉकी बुलाता है. वॉट एवर यू कॉल इट, नो, यू राइट देयर इट्स नेम. आई रिटर्न हियर माई पेट डॉग नेम इज मोतू. हु गेव इट दिस नेम? माई ब्रदर गेव इट दिस नेम. मेरा भाई ने नाम दिया है. अदरवाइज यू राइट योर सेल्फ, आई ओनली गेव इट दिस नेम. आई कॉल्ड इट दिस नेम. I called it by this name. मैं इस नेम से उसको बुलाता हूँ, मैंने ही रखा है. अदरवाइज योर ब्रदर सिस्टर
राइट देयर नेम्स, हु कॉल्ड इट बाय दिस नेम, इस नेम से उसको किसने बुलाया, उसका नेम लिखो। What does it like to eat, वो क्या खाना चाहता है, मेरा पेट मोथू है, डॉग है, मोथू, मेरा मोथू लाइक्स टू ईट मीट एंड बिस्किट, उसको तो ज़्यादा मीट एंड बिस्किट अच्छे लगते हैं। हाउ मेनी टाइम्स अ डे इज इट गिवन फूड, कितने बार आप उसको खाना देते हो, यूजुअली थ्राइस अ डे, 3 टाइम्स, मॉर्निंग, आफ्टरनून एंड नाइट टाइम, दिन में 3 बार हम उसको खाना देते हैं। व्हेन डज इट स्लीप, फॉर हाउ लॉन्ग डज इट स्लीप, यूजुअली इट स्लीप्स 5 to 6 आवर्स इन अ डे, मेरा मोथू तो, मेरा डॉगी तो क्या करता है, दिन में ही 5 to 6 आवर्स होता है। इज देयर एनी स्पेशल वे टू लुक आफ्टर दिस एनिमल, हाउ, कोई अलग केयर लेते हो उसका, यस ऑफ कोर्स, आई फीड इट, हम उसको खाना खिलाते हैं रेगुलरली, दिन हर दिन, एवरी डे, ऑलवेज कीप इट क्लीन, उसको बाथ दिलाते हैं, उसको नहाते हैं, एंड टेक इट टू वेटरनरी डॉक्टर एवरी मंथ, हर मंथ को उसको डॉक्टर के पास जाकर चेकअप करवाते हैं। आप डज इट गेट एंग्री, व्हेन, हाउ डू यू इट इज एंग्री, आपका पेट एनिमल डॉग गुस्सा होता है, या ऑफ कोर्स, whenever मोथू सी एन अननोन पर्सन, माय डॉग इज मोथू, किसी अपरिचित व्यक्ति को उसने देखा तो ही गेट्स एंग्री एंड स्टार्ट बार्किंग, कोई नया आदमी आपके घर के सामने आया तो दैट टाइम योर डॉग स्टार्टेड बार्किंग, नो, यस, करेक्ट, नाउ टर्न द पेज, सी हियर, डज इट हैव अ हेयर और फेदर ऑन इट्स स्किन, आपके पेट के ऊपर फेदर्स है या हेयर्स है, आंसर, इट हैज़ अ हेयर ऑन इट्स बॉडी, बाल है, डॉग के ऊपर फेदर्स रहते हैं, कैट के ऊपर फेदर्स रहते हैं, नो, कैन यू सी इट्स ईयर्स, यस, इट इज अ, कैन यू सी इट्स ईयर्स, यस, यस, 1 minute kids, yes, I can see its ears. Is it a baby or a young animal? Is it a baby or a young animal or a full grown animal? It is a young animal. It is not a baby, it is not a grown animal, it is a young animal. Will this pet animal lay eggs or give birth to babies? आपका पेट एग देता है, बेबीज़ को बर्थ देता है, ऑफकोर्स डॉग तो बेबीज़ को बर्थ देता है, अ डॉग गिव्स बर्थ टू बेबी, हमने लेसन में लर्न किया है, डॉग गिव्स बर्थ टू बेबी, ओके। डज इट हैव यंग वंस, आपके डॉग को, पेट को और एक छोटा बेबी है, नो, नहीं है। Now last question, draw a picture of this animal and color it, give it a name of your own choice. यहाँ पर क्या बोला है बच्चे, देखो, blank page is there, place is there, here draw your whatever we told now here, हमने कौन सा pet, it may be dog, it may be cat, it may be any bird, आपका favorite वाला, किस एनिमल्स का नाम लिखते हो, नेम लिखते हो, उसका एक्सप्लेनेशन दे दो, कैसा है, उसको कितने बार खिलाते हो, उसका नाम क्या है, वो कितने आवर्स सोता है, वो क्या करता है, वो क्यों गुस्सा होता है, उसके हेयर, स्किन के ऊपर हेयर्स हैं, फेदर्स है, वो यंग है, ओल्ड है, बेबी है, वो आपका पेट ले एग्स और गिव बर्थ टू यंग वंस, आपके पेट एनिमल को बेबी है या नहीं है, वो सब कुछ आपको लिखना पड़ेगा, एंड यू ड्रॉ हियर दैट एनिमल्स पिक्चर,
I will draw here my dog's picture. मैं इधर मेरे डॉग का पिक्चर निकाल कर दिखा दूंगी. ओके. Now come to on page number 19. After that our lesson over. Okay. See kids, this one I will explain with you. This activity is there in the next video. Thank you.